16 centimeter, 20 centimeter, 12 centimeter. Now tell me the greatest value here. 20 centimeter. So h will be 20 centimeters. H is hypotenuse. Then you are having 16 or 12. You can take 16 as perpendicular or 12 as perpendicular, doesn't matter. So I am taking here 16 as perpendicular and base as 12 centimeter. Now you know that by Pythagoras theorem, H square goes to B square plus A square. hypotenuse square equals to perpendicular square plus Plus base square. square. ठीक है. अब इसके बाद now substitute values. H square, so h is 20, so 20 square, then perpendicular 16, so 16 square, plus base is 12, so 12 square. Now 20 square is 400, 16 square is 256, 12 square is 144. Now add this, so 400 equals to, if you will add this, you will get 400. So you are getting equal, 400 equals to 400. That means this, It is a right angle triangle. these three sides are forming a right angle Triangle. triangle. Is there any doubt? No, sir. So this is your required diagram. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Then question number 5. In that question number 5, in the adjoining figure, angle BAC. Now first I am drawing triangle here. So this is your required triangle BAC. So BAC. So we are having here angle BAC is 90 degree. So whenever you are having this type of notations here, the middle value represents angle. तो यहाँ पे middle में कौन सा है? A है. That means A क्या होगा? 90 degree होगा. कोई doubt इस पे? No, sir. Now AC is 400 meter. So where is our AC? Yes, this one. So 400 meter. Then AB is 300 meter. So it is 300. Now I told you that how to identify which side is perpendicular and which is base. So first thing is that where you are having 90 degree, the sides including this 90 degree are AC and AB. So you can consider AC as perpendicular and AB as base. Then what is left here? BC. So that will be hypotenuse. Any doubt? No, sir. So sir. formula is h square equals to p square plus b square. H square. So hypotenuse is BC. So you will write here BC square. Then perpendicular is AC. So you will write AC square. Then base is AB. So AB square. Now substitute values here. So first thing is that BC, which we have to calculate. So we will write as it is BC square. Now AC square is given to us 400. So it will be like 400 square. Then AB is 300. So it will be like 300 square. Is there any doubt? No, sir. Okay, now you are having 400 square. 400 square means what? 400 into 400. So 4 into 4 you will get 16 and this 202040. So you will write 160000. Then again 300 square. So 300 into 300. So 3 into 3 9 followed by 1 2 3 4. 1 2 3 4. 90,000. 90,000. Is there any doubt? No, sir. Now add this to 1,60,000 and 90,000. So you will get 250000. Any doubt? No, sir. अब देखो BC equals to हो जाएगा अंडर रूट 25000. As I told you that perfect square you have to find. So 50,000. no, not 50,000. Sir, 500. Yes, exactly. 25 का स्क्वायर कितना होता है? Sir, 5. 5. ये 2 जीरो है, 2 जीरो में 1 जीरो बाहर आता है 5. फिर यहाँ से एक और कितना आ गया? 500.
तो देख लो हाइपोटेनियस सबसे बिगर आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई डाउट No, sir. किसी को भी? No, sir. एनीवन? No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Now in this question number 6, let me draw diagram first. डायग्राम क्लियर बनते समझ में आते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is your required diagram, and just A, this is B, and this is C, and this one is D. 90 degree we are having at C and at D. Now you are having two hyphens here, 1 2 and 1 2. These hyphens are indicating that sides are equal. That means AP will be equals to BP. ये इंडिकेट करते हैं, कभी भी ऐसा लगा रहता है ना, समझ जाना AP विल बी इक्वल्स टू BP. कोई डाउट इसमें? BP. जैसे ये यहाँ पे रहता, जैसे ये यहाँ पे रहता, ठीक है, यहाँ नहीं रहता, समझ लो जैसे ये यहाँ नहीं होता है ना, यहाँ नहीं होता, जैसे यहाँ होता, इसका मतलब ये AP और CP दोनों आपस में क्या होते? Equal. Now from the question, AC 12 centimeters, so we will write here 12 meters, sorry, 12 meter. Then after BD, where is our BD? Here, 9 meter. Now PA and PB, so both are 15 meter, and this is also 15 meter. Now what we have to find? So first we have to find value of CP, second we have to find value of PD, and third we have to find value of CD. बना लोगे? देखो कैसे बनाओगे. सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? सी पे. सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP. Now tell me in ACP which is perpendicular, which is base, and which is hypotenuse. So I will ask Natika. नैतिका, जी सर. यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है ट्रायंगल ACP में? ACP में जयेश, जयेश, yes sir. which is perpendicular here in this diagram ACP? Sir, A or C? Okay, AC perpendicular. Prachi, Yes sir. which is hypotenuse? Sir, AP. Okay, and what about base? Sir, CP. Okay, so देखो यहाँ पे अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम. क्या होगा? H square X square plus P square plus B square. So your H is AP, hypotenuse, so AP square. Perpendicular is AC, so AC square. Base is CP, CP square. Now substitute values. AP is 15 square, 15 actually. So we will write this as 15 square. Then AC, which we have to, no, AC is given 12 square. CP we have to find. So 15 square 225 equals to 12 square 144 plus CP square. Now substitute, transpose this 144 to the left hand side. So 225 minus 144 equals to CP square. So you will get CP square equals to 81. So you will get CP equals to under root 81, and the last CP equals to 9. 9. Any doubt?
Is there any doubt? No, sir. Okay, now tell me about PD. PD कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तनिष्क PD में Yes, sir. ट्रायंगल BPD, ठीक है, ट्रायंगल BPD सॉल्व करो जिसमें ये वैल्यू गिवन है BP और BD गिवन है, आपको PD निकालना है। पाइथागोरस अप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। Yes, sir. Question number 7, triangle PQR is there and angle Q is 90. So just make this right angle triangle and it will be like P, then Q, then R. So this PQR 90 degree. Then PQ is given, PQ is 8 centimeter given and QR is 6 centimeter given. You have to find PQ. So this is your right angle triangle, right angle at Q. अप्लाई करो पाइथागोरस, बताओ कितना आंसर आ रहा है। Sir, 10. 10. Yes, sir. मेरा भी 10 है. Okay, right answer. Second part. 16 centimeter. Sir, 16 centimeter. Second part. 16 centimeter. In second part, PQ फाइंड आउट करना है। PR गिवन है 34, QR गिवन है 30. So 64 into 4 कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना? 16 आंसर? Yes, sir. Okay, right answer. Now question number 8. Question number 8, same question I explained you now. Show that triangle ABC is a right angle triangle. If AB equals to 9, BC equals to 40 and AC equals to 41. Now tell me which will be hypotenuse here. हाइपोटेनियस कौन सा होगा? AC. 41 सेंटीमीटर होगा। Yes, sir. बिगेस्ट साइड जो होती है उसको हाइपोटेनियस लेते हैं, फिर परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं और बेस को ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई कर दो, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा 41 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर फाइंड करना है तो बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो बेस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो बेस ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। सॉरी, बेस गिवन है ना 9 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 41 स्क्वायर निकालोगे तो ये होता है 1681 होता है, 1681, और इसका 40 का होता है 1600, इसका होता है 81। वी आर गेटिंग सेम और डिफरेंट? Sir, same. That means triangle ABC is Right angle triangle. right angle triangle. कोई डाउट उसमें? No, sir. ट्रायंगल ABC राइट एंगल है जिसमें ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, बस बता दो ये 41 है, ये 40 है और ये जो है वो 9 है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो 90 डिग्री। कोई भी डाउट? No, sir. एनीवन? श्योर? Yes, sir. Okay, now I'm recording this one lecture also, and if anybody is having any kind of doubt, do watch this videos. Anna, the first one I had sent you, and second one this also I will send. And if you people are having any doubt, just go through these videos.
definitely you will be able to understand these concepts and you will solve questions easily. Any doubt? No, sir. Okay, now in question number 9. In question number 9, we are having a diagram like this, and ऐसा ही है ना डायग्राम. A, B, C, D. Here you are having 90 degree. Okay. Now in this question, सॉल्व करके बताना आपको. AB is given 10, BC is given 6, AD is given 17. Now we have to find AC and CD. देखो सबसे पहले तो AC और CD ये दोनों फाइंड आउट करना है. तो देखो AC जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है. AC जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है. अब देखो ये पार्ट जो है इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ABC में आपको AB और BC दोनों गिवन है. तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाओगे तो जहाँ पे आपको हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा. फिर ये परपेंडिकुलर जैसे निकालोगे, फिर ये परपेंडिकुलर को यूज़ करोगे और ये हाइपोटेनियस को यूज़ करोगे, तब ये निकलेगा. निकल जाएगा. कोई डाउट नो सर. किसी को? No, sir. Okay, now solve No, sir. this one and tell me what is the value of AC here right now. ऐसे देख के सॉल्व होना चाहिए कि ऐसे देखो क्वेश्चन है ना, और देख के बता दो कि हाँ सर वैल्यू ये आ रही है. सेंटीमीटर. यस, वेरी गुड. 8 सेंटीमीटर. और इसकी बता दो. सीडी की 15 सेंटीमीटर. यस, वेरी गुड. निकालो सब कैलकुलेट करो. सर निकल गया. इजी है ना पाइथागोरस? Yes. हाँ Yes. बेटा, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि अच्छे से समझ लिए हो. नहीं तो पाइथागोरस ना कई बच्चे रोते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहे हो क्या रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को भी कोई डाउट है बताओ. No, sir. बाकी बच्चे आवाज़ नहीं दे रहे हैं. In that question number 10, this single hyphen here and this 2, then this 2 and this 2. Now tell me which sides are equal here after seeing this diagram. BC or CD. The AB and AC. The AB and AC. AB and AC. ओके. अब एक बात बताओ, इसमें देखो सबसे पहले तो sides AB and AC, these two are equal. Any doubt? No sir. No, sir. Then sides BD and DC, these two are equal. Because it is given in diagram. ये देखो डायग्राम में गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. दिख रहा है ना क्लियरली? Yes sir. अब एक बात बताओ, यहाँ पे AD आपको पता है, ये AC 26 सेंटीमीटर है. AC 26 है तो AB भी कितना होगा? 26 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आइदर सॉल्व ट्रायंगल ADB और सॉल्व ट्रायंगल ADC. कोई भी एक ट्रायंगल लेके सॉल्व करो, ठीक है. तो जैसे चलो ADC सॉल्व कर लेते हैं. तो ADC में ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस कौन सा होगा? AC. AD क्या होगा? परपेंडिकुलर. और DC क्या होगा? Yes. बेस. देखो पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उससे इंक्लूड जो दो साइड्स होती हैं वही परपेंडिकुलर और बेस होती हैं. बता चुका हूँ, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ठीक है. अब इसमें देखो होगा ये फॉर्मूला लगा दो. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h² इक्वल्स टू b² प्लस b², ठीक है. अब हाइपोटेनियस हमारा कौन सा है? हाइपोटेनियस AC है तो AC². परपेंडिकुलर हमारा AD है तो AD². बेस DC है तो DC². अब वैल्यूज़ किसकी किसकी गिवन है?
सबसे पहले AC की गिवन है 26 स्क्वायर, फिर AD की भी गिवन है 24 स्क्वायर, प्लस DC कैलकुलेट करना है तो DC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मैं इजीली बता देता हूँ, 10 आएगा अंडर रूट सॉल्व करके। ठीक है, तो ये जो सॉल्व करने का वे है ना, ये तुमको आना चाहिए। सबसे पहले मैंने स्क्वायर्स बोला था याद करने के लिए। Yes, sir. ऑनेस्टली बताओ किसने किसने याद किया है? देखो ये 26 का 676, 24 का 576, तो DC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 676 माइनस 576, सो DC स्क्वायर इक्वल्स टू 100, DC इक्वल्स टू अंडर रूट 100, एंड फाइनली DC इक्वल्स टू 20. 10. Now DC 10, so this BD also, because BD equals to, DC. is there any doubt? No, sir. Sir. Anyone? No, sir. No, sir. Okay, now solve question number 11. Question number 11 solve करो। We have to find length of DC. We have to find length of DC. ठीक है, Sir, find DC to find the length of AC ना। we have to find length of DC, but यहाँ पे DC को find करने के लिए पहले length of AC पता होना चाहिए। Yes, sir. AC कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे AB गिवन है और उसके साथ BC गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 144, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9, 153। Yes, sir. ठीक है, तो 153 आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो 153 को, तो ये होता है 17 9 या 153, यहाँ से 9 बाहर निकल जाता है तो ये आता है 3√17। ठीक है, तो यहाँ पे आप √153 भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, और उसके बाद 153 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो DC निकालना है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो लगा दो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर है 13, तो 13 स्क्वायर, p स्क्वायर हो जाएगा DC स्क्वायर, और b स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और DC स्क्वायर विल बी DC स्क्वायर एज इट इज़, और ये आपका हो जाएगा √153 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर जब भी होता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 169 इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा? 153। अब 153 को ट्रांसपोज करो उधर, तो 169 माइनस 153 इक्वल्स टू DC स्क्वायर, तो DC स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एंड फाइनली DC इक्वल्स टू हाउ मच? 4। कोई डाउट? No, sir. किसी को भी? No, sir. एनीवन? No, sir. अब देखो ये क्वेश्चन लेडर वाला, देखो इसमें एक ये लेडर है, इस लेडर की जो लेंथ है यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरी, ठीक है, ये 6.5 मीटर है। इसके बाद दिया हुआ है कि इस लेडर को एक वॉल के अगेंस्ट प्लेस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे वॉल कौन सा होगा? देखो ये आपका वॉल होगा, ये वॉल है ना, जिसके ऊपर आपने लेडर को प्लेस किया है। कोई डाउट इसमें? No, sir. अब देखो उसमें क्या बोल रहे हैं कि फुट ऑफ द लेडर, मतलब फुट ऑफ द लेडर यही है जहाँ पे हमने रखा हुआ है, वो 2.5 मीटर है फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। वॉल यहाँ पे है, तो ये वॉल के फुट से 2.5 मीटर अवे है। ठीक है, ये आपका वॉल का फुट है ये, तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है?
2.5 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना ये है कि कितनी हाइट तक लेडर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कैलकुलेट हमको जो करना है वो हमको ये करना है कैलकुलेट। ठीक है, हमको ये निकालना है, तो ये निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे? देखो ये जो है आपका हाइपोटेनियस है, ये जो है आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और ये जो है आपका ये क्या है, बेस। लगा दो फॉर्मूला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना होगा, 6.5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसको परपेंडिकुलर ही रहने दो, और बेस स्क्वायर दिया है 2.5 स्क्वायर। ठीक है, 2.5 स्क्वायर है। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो अब 6.5, ठीक है 6.5 है यहाँ पे, 6.5 का स्क्वायर, तो 6.5 इंटू 6.5 करोगे तो ये आएगा 42.25 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25। इसको ट्रांसपोज कर दो इधर, तो 42.25 माइनस 6.25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये 2525 ये तो 0 आ गया डेसिमल, ये आ गया 36 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर डायरेक्टली 36 लिख सकते हो, p इक्वल्स टू √36, और p कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वैल्यू आई ये कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? 6 cent. No. किसी को डाउट? No, sir. किसी को भी? ठीक है, किसी को डाउट? No, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरीके का है, जिसमें जैसे ये डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक बॉय है, ठीक है, फर्स्ट 5 मीटर वो ड्यू नॉर्थ में जाता है। ठीक है, मतलब 5 मीटर वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ये ओरिजिन है, ये यहाँ 5 मीटर नॉर्थ में गया। ठीक है, ये 5 मीटर नॉर्थ में गया। उसके बाद म्यूट करो, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि 12 मीटर ड्यू ईस्ट, तो 12 मीटर जो ईस्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे इस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये इधर। कोई डाउट डायग्राम में? No, sir. अब इसमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब पहले देखो यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ तक, यहाँ जैसे आया। अब जो डिस्टेंस है मतलब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना ट्रेवल किया उसने। ठीक है, तो यहाँ ये 12 मीटर, यहाँ 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये जो है बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 169, और सॉल्व करोगे √169, फाइनली कितना आ गया 13. कोई डाउट इसमें? No, sir. एनीवन? No, sir. किसी को भी?